session in our welcome back to yet another session in our fundamental physics series. And in the previous in the previous big section of our journey, we have covered two very important concepts of physics that are electricity and magnetism. So, a lot, a lot of technological innovations and the technological aids that we are using in our lives on daily basis can be attributed to electricity and magnetism, the effects of electricity that we use in our homes to produce light, to produce mechanical energy and absorb wind from it, using the ACs, our electronic devices. All of this can be attributed to electricity and its innovation. But now we have come to a juncture where we are going back to the natural um, occurrence of the effects of energy that we have been using in our daily lives prior to this modern civilization, and that is light. So it's a fresh chapter. We are going to start fresh, and as always, we are going to create a timeline, as you can see on your screens, that the chapters, the whole subject of light is divided into four different classes in the NCERT syllabus that we are concerned with, the basic foundation from 6th to 10th. So we'll be starting off with the class 6th, chapter 11, that is light, shadows, and reflection, which again is going to be very basic, because as we have been following the trend of NCERT, we can see that they start with the very basics and then they introduce newer and trickier concepts in the following classes. So that's how I have structured this course as well. So this timeline page and this reference NCERT page, we are going to see this in all of our classes, and the portion where we are at the current moment will be highlighted. For example, when we'll be in class 8, this will be highlighted, and now we are on class 6, that's why this is highlighted. So without any further ado, let's get started with the chapter 11, that is light, shadows, and reflection. And before I start directly, I would like to say a few things about light. Um, in our culture, in our Hindu culture, we tend to have some technologies that were found by our ancient sages, our ancient seers and sages. हमारे जो ऋषि मुनि थे, महर्षिस थे, उन्होंने कुछ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज बनाई थी ह्यूमंस को, हमारे लिए, हमारे वेलबींग के लिए. उनका नाम आपने सुना भी होगा. जैसे सबसे बड़ी देन जो हमारे पूर्वजों की है वो है योग, एंड दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज आयुर्वेद. So both of these technologies that are there for our own evolution and our well-being are very very tightly integrated to the cycle of the sun. Every day when the sun rises and when the sun sets, our ancient sages, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी कई बातों के हिसाब से हमें अपनी दिनचर्या जो है उसको सन की साइकिल के साथ, सनराइज और सनसेट के बीच में समाप्त कर लेना चाहिए. कहा जाता है कि हमें सनराइज से पहले उठना चाहिए, उसके हमें काफी बेनिफिट्स मिलते हैं. हम और अगर मॉडर्न साइंस से रिलेट करें तो हमारी ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो अल्फा स्टेट में होती हैं, जो कि बहुत सटल वेव्स होती हैं. तो सुबह जब आप उठते होंगे, कोई बाहर शोर शराबा नहीं है, एकदम शांति रहती है आपके अंदर, तो आप ऐसी activities in which the mental game is required, or you need a very acute concentration, then those things can be done before sunrise. And it is also said कि हमारे जो नित्य कर्म है, are the purification of the body. आप अपना ब्रश कर लें, टीथ को नहा लें, अपना गो टू द वॉशरूम, ये सारी चीजें सनराइज से पहले हो जानी चाहिए. एंड विद द सनराइज यू शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग फूड. आयुर्वेद के सूत्रों के हिसाब से आपको सनराइज से सनसेट तक ही खाना चाहिए, सो देयर विल बी नो इश्यूज विथ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर ये चीज फॉलो करें. और हमारे दादा दादी, नाना नानी ये चीज करते भी थे.
बट हमारी जनरेशन थोड़ा इसे भूल रही है. So light has a very profound effect on our lives, and that too the natural light, that is the sunlight, um, is actually guiding a lot of things in inside our human bodies and our civilization in general. So that was just some food for thought. And अब हम आगे बढ़ते हैं and let us get to the basics. So the first topic there was in the NCERT class 6th was three terms: transparent, opaque and translucent objects. अब ये क्या होते हैं भाई? तो जब हम लाइट की बात कर रहे थे तो उसी से रिलेटेड पहला एक टर्म ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उनके बारे में जानते हैं. अब हमारे इस सेक्शन ऑफ द पेज या फिर स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि देर आर सम ऑब्जेक्ट्स विच look like they are emanating, they are generating light, they are emitting light out of them. जैसे कि हमारा sun, which is the biggest source of natural light for our solar system, and ये जुगनू हो गया, या फिर हमारे man made light sources जैसे torch, candles, etc. These are luminous objects, and by the definition given in the NCERT, it suggests that the objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. तो ये हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कि luminous and non luminous क्या होते हैं. ऑब्जेक्ट्स इनएनिमेट भी हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं, या फिर नेचुरल occurring भी हो सकते हैं, और उनके बीच का डिफरेंस कि वो लाइट एमिट करते हैं या नहीं. जैसे सन और मून में ये डिफरेंस है. सन इज अ लाइट, इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. रात में तो भाई मून भी चमकता है, वो उसको भी ऐसा लगता है कि लाइट एमिट कर रहा है, बट नहीं, मून रिफ्लेक्ट्स लाइट. रिफ्लेक्शन एक वर्ड है जो हम इसी अपनी फाउंडेशन फिजिक्स ऑफ लाइट की जर्नी में सीखेंगे आगे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन. बट वो जनरेट नहीं करता, वो बस उसे बोरो करता है. सन की लाइट को वो एक तरह से बोरो कर लेता है एंड रिफ्लेक्ट करता है हमारे अर्थ पे बैक. So some objects that you use in your daily life, like a pen or your tables and you yourself and some books, ये सारी चीजें non luminous objects में आती हैं. Now coming to the topic that's mentioned above, what are transparent, translucent and opaque objects? तो अब हमें ये तो कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये लाइट से रिलेटेड ही है. ल्यूमिनस हमने पहले बताया, मतलब कुछ लाइट से ही इनका इंटरेक्शन या रिलेशन होगा. So let's see these 3 points that are mentioned here. If we cannot see through an object at all, it is an opaque object. भाई ऐसी सॉलिड वस्तुएं जिसके आर पार आप देख ही नहीं सकते. कोई ऐसी सॉलिड, जैसे मेरा हाथ ही हो गया. If I keep it in front of the camera, you cannot see through it. You can see just the light that is coming from here. उसके आर पार आप नहीं देख पा रहे. But now you can see me. So my hand is a solid thing and it is an opaque object by definition. Then if you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and is called transparent. इमेज भी यहाँ पे काफी सही बनी हुई है. आपके घरों की जो खिड़कियां हैं, कांच हैं, जिनसे आप आर पार देख सकते हैं, these are called transparent objects. And then एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट होता है इन दोनों के बीच का, जो ना ही ओपेक है और ना ही ट्रांसपेरेंट है, बीच का है. So there are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent. जैसे कुछ बहुत ही फाइन क्लॉथ होते हैं, क्लॉथिंग, जैसे वो मूसलिन क्लॉथ होता है जिससे वो दही वगैरह बनाई जाती है टांग के, या फिर पनीर बनाया जाता है सुखा, वो टांगते हैं जिसपे जब पानी ड्रिप कर जाए, उसमें से भी कभी कभार आपको चीजें दिखती हैं. या फिर बटर पेपर जो होता है, जो मक्खन के साथ लग के आता है, उसमें से भी आप यू कैन सी थ्रू इट बट नॉट वेरी क्लियरली. अब इसमें जैसे विंडो के जो शेड्स होते हैं, ऐसे शेड्स माने जो पर्दे होते हैं कुछ ऐसे जो बहुत हल्के कपड़े के बने होते हैं, दे आर ऑल्सो एबल टू पास सम लाइट थ्रू इट बट नॉट ऑल ऑफ इट. वो बस हमारा यूज केस क्या था यहाँ पे कि लाइट को, हम जो हार्श लाइट सनलाइट आ रही है उसको थोड़ा ब्लॉक कर पाए, बट वी शुड ऑल्सो बी एबल टू सी आउटसाइड. तो वो विंडो शेड्स हो जाते हैं.
these are translucent objects. तो ये सीखने का हमारा मकसद ये था कि जब हम अपने आगे के लेक्चर्स में जाएंगे तो हम काफी सारे रियल ऑब्जेक्ट्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं इन इफेक्ट्स ऑफ मतलब इस इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को लेकर, तो इनका काफी हमें मतलब हेल्प मिलेगी हमें जानने के लिए. जैसे हमारे सन ग्लासेस भी होते हैं, वो भी मतलब वो किस कैटेगरी में आएंगे हमें पता नहीं, वो एक और स्पेसिफिक कैटेगरी होती है ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट के बीच में, या लेट्स से ट्रांसलूसेंट ही होते हैं वो. तो वो पोलरॉइड उन्हें कहते हैं, बट we'll get to that in our later classes. So I hope these things are very basic and might be clear. Then moving on, what are shadows? If you can see this little GIF here, this mischievous girl is afraid of her shadow, and it can be seen that she is in the natural sunlight. वो बाहर में outdoors में natural sunlight के नीचे खड़ी है, एंड उसकी शैडो यही एक चीज है जो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकरा के जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे लाइट का सोर्स है एंड एक सॉलिड ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई भी वो लाइट उस पर पड़ रही है, तो अगर उसने उस लाइट को ब्लॉक कर लिया, इफ दैट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो वहां उसके पीछे कोई एक ऐसी चीज बनती है विच इज डिवॉइड ऑफ ऑल लाइट. ऐसी चीज जहां पे कोई लाइट ना हो, विच इज डार्कनेस, ब्लैकनेस, वही शैडो होती है. तो दिस हियर कैन बी सीन कि ये रोड भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसके लाइट थ्रू पास हो नहीं सकती. तो जो लड़की है वो, इट इज कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन द सनलाइट एंड द रोड, एंड वो हम देख पा रहे हैं जहां जहां वो चल रही है, जा रही है, उस एरिया के एकदम ही परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री के एंगल पे ये एक शैडो बन रही है. आई कैन सी द mentors have raised a hand. Please go ahead if you have a question, sir. Please, mentors, please make sir the panelist. Oh, okay. All right, all right. My mistake. Aryan, you continue. Yes, ma'am. I'll just make promote to panelist. I was just doing that. Okay, I've made the study center a panelist. So now moving on, it was just a simple concept what a shadow is, and I found it a little amusing to demonstrate it through this GIF. It seems that we need a source of light in this GIF. In this example, it is the sunlight and an opaque object to see a shadow. And shadow is nothing but a absence of light, an obstruction to the path of light. Then there comes an interesting uh, tool that was created by observing nature, and it is called a pinhole camera. Yes, it is a type of camera that you can make just with two cardboard boxes. And I still remember that we were given this demonstration in our, I guess, in our sixth or seventh standard by our physics teacher, and that was fun. So for
the exact observation of this phenomena of a pinhole, uh, exact demonstration of this pinhole phenomenon, if we see through a very dense forest or a tree which is very densely covered with a large number of leaves, then we will notice that small patches of sunlight pass through it. They are sometimes called the God rays or sun rays. But in this GIF, you can see that ऐसा कुछ होते हुए आपको दिखता जरूर होगा जब भी आप पास करते हैं, कभी आप ट्रेन से जा रहे हो रास्ते में, या फिर इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार, कभी आपकी नजरें पड़ गई हो ऐसे, तो ऐसा दिखता है कि सनलाइट पूरी की पूरी नहीं पास हो रही, बट ऐसे अगर आपने सन को कभी देखा तो बहुत इरिटेशन हो सकता है आंखों में, और बहुत जिसको कहते हैं चौंधिया जाती हैं आपकी आंखें, फिर बहुत ज्यादा लाइट चली जाती है तो दर्द भी होता है फिजिकली. बट वेन यू सी लाइट पासिंग थ्रू दीज लीव्स, जो स्मॉल गैप्स हैं उन डेंस फॉरेस्ट और डेंस लीव्स स्ट्रक्चर्स के बीच में, तो आपको वो भीनी भीनी सी सन रेज निकलती हुई दिखती हैं. तो दैट इज द पिन होल इफेक्ट. एंड we are going to see a small video which is going to demonstrate that activity which is in the topic 11.3 in our NCERT class 6 book. This activity is going to be easy to understand if we go through this video. So all of you, please just have a look at this. What is wrong with this? All right. So just give me a response in the chat if you can see the video playing. Let's attend to a question that's there in the chat box. Vaibhav has asked that, sir, does translucent object form a shadow? Yes, man, translucent object will form a shadow. As we can see कि वो एक opaque object और एक क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बीच की चीज है. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पूरी लाइट अलाउ करता है आने के लिए, एंड ट्रांस ओपेक बॉडी क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, लाइट को पास ही नहीं होता, तो बहुत स्ट्रॉन्ग शैडो बनती है. सो इफ अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट विल बी देयर, उसकी वही ओपेसिटी कुछ परसेंटेज में होती है. 100% opaque object is an opaque object, but 80% or 50% opaque object will be a translucent object. तो जितना जितना वो डेंस मटेरियल से बना होगा, जितना उसको हमने सेलेक्टिवली बनाया होगा लाइट को पास कराने के लिए, उतना ही. अब जैसे जितनी लाइट सोर्स में से आ रही है, सनलाइट से जितनी लाइट आ रही है, उसके बीच में हमने अगर एक पेपर रख दिया, जैसे वही बटर पेपर की हमने बात की, या फिर एक मुस्लिम क्लॉथ रख दिया, तो वो कुछ तो लाइट को ब्लॉक कर ही रहा है. कुछ लाइट जो सनलाइट आ रही थी उससे उसने कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब कर ली, तो वहां पे जो सराउंडिंग के कंपैरिजन में एक हल्की शैडो वहां बनेगी. बहुत डेंस डार्क शैडो नहीं बनेगी, बट देयर विल बी अ शैडो. एंड अगर हमने एक ग्लास रख दिया तो कोई शैडो नहीं बनेगी, बस हल्की सी एक आउटलाइन जैसी दिख सकती है, क्योंकि ग्लास के एजेस पे जो है लाइट पास नहीं हो रही, वो रिफ्लेक्ट करके कहीं और ही चली जा रही, तो देयर विल बी अ स्क्वायर बाउंड्री अबाउट दैट. So yes, translucent objects will also make a shadow, but they that won't be as dense as an object or as an opaque object would make. So I hope that is a sufficient answer. प्रकाश के मान में कोई आप आती है, परिणाम स्वरूप जो आकृति बनती है उसे छाया कहते हैं. जी हाँ, ये एक अच्छी डेफिनेशन है हिंदी में भी. थैंक यू तनु फॉर
articulating it in this way. All right. So let us go ahead with the video. So ये कुछ information यहाँ लिख के आ रही है, rectilinear propagation और कुछ technical terms लिख के आ रहे हैं. हमें इनसे अभी घबराना नहीं है. This is kept for the 9th and 10th versions of the light chapter that we are going to study. उसमें थोड़ा ज़्यादा mathematical and technical and geometric mean से हम study करेंगे light को. But today we are just getting ourselves comfortable, making ourselves comfortable with the concept of light. So यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी में दो बॉक्सेस लिए हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, एक बड़ा और एक उससे थोड़ा छोटा, कि बस वो उसके अंदर फिट हो जाए, स्लाइड करे एक दूसरे के अंदर. एक ऐसा एक क्लोज अपैरेटस बनाएगा जिसके बीच में कोई गैप ना हो. एंड ये जो पिन होल इसमें बना दिया है, ये थोड़ा सा बड़ा है जो इन्होंने कट करके होल दिखाया. पिन होल शुड बी वेरी स्मॉल, लगभग 5 to 6 सेंटीमीटर्स के डायमीटर का, मतलब इतना बड़ा, लगभग इतना बड़ा एक छेद होगा. And this was actually the precursor to the modern cameras that we use today. जो हम लोग अपने कैमरास में सेंसर्स देखते हैं, जो आजकल बहुत एपर्चर और f1.2 1.3 की बात होती है, वो सारी चीजें इसी से डिराइव हुई हैं. कितना डायमीटर होता है लेंस का, उसी से सब मतलब डिफाइन होता है कि कितनी लाइट उसमें आएगी. सो इस एक्सपेरिमेंट में एक लाइट का सोर्स रखा गया कुछ डिस्टेंस पे कैमरा के सामने, एंड जो सेकंड छोटा बॉक्स था उस पे हमने एक स्क्वायर काट के उसके एक एंड पे एक ट्रांसलूसेंट पेपर लगा दिया, जिस जो हम लोग अभी तक बात करते आ रहे हैं. तो एक जब कैंडल रखी जाएगी सर्टेन डिस्टेंस पे उसके सामने, आगे पीछे करके हम उसे एडजस्ट करेंगे कि एक प्रॉपर इमेज बन जाए. सो दीज वर द थ्री इन्फरेंसेस दैट वी टुक फ्रॉम दिस एक्टिविटी. द इमेज ऑफ कैंडल फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड इन साइज. डिमिनिश्ड इन साइज मतलब थोड़ी छोटी इमेज बनी जितनी वो असल में है. एंड the image of the candle form was inverted. तो ये भी एक बहुत नेचुरल फिनोमेना हमारे, इवन हमारे आंखों में. जब आप बायो में अदिति मैम की क्लास में और आगे जाएंगे, इफ शी टीचेस यू अबाउट द आई एंड हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन आवर आई एंड इन आवर नेचुरल इमेज परसेप्शन सिस्टम, तो यही पिनहोल कैमरा जैसे कॉन्सेप्ट के तहत हमारी आंखों में भी जो लाइट जाती है उसकी इमेज हमारे बैक ऑफ द हेड पे, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट में वैसी बनती है, एकदम इन्वर्टेड में. जो भी चीज हम देखते हैं इन्वर्टेड है, एंड देन आवर ब्रेन, हमारा दिमाग एक्चुअली उसे इट टर्न्स इट अपसाइड डाउन, क्योंकि दिस इज हाउ आवर एवोल्यूशन हैज बीन. तो पिनहोल कैमरा हमारे आजकल के जो मॉडर्न कैमरास हैं उनका उनका इंसेप्शन पॉइंट है, उनका प्रीकर्सर है. यहीं से इमेजेस क्रिएट होना शुरू की थी. पुराने अगर आपने इंग्लिश मूवीज देखी हो या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम की मूवीज वगैरह देखी हो, तो देखा होगा आपने बहुत बड़ा सा इतना डब्बा बड़ा जैसा कैमरा रख के और उस पर काला कपड़ा डाल के एक आदमी फोटो खींचता था खूब दूर से. एंड वो यही पिनहोल कैमरा का कॉन्सेप्ट यूज करते थे. एंड ये जो फिल्म लगी हुई है यहाँ पे ट्रांसलूसेंट वाली, उसको ऐसे सर्टेन मटेरियल से बनाया जाने लगा कि वो लाइट जो उस पर पड़ रही है उसको कुछ समय तक अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर ले. कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, केमिकल मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर आप लगा दें किसी पेपर पे, तो देन इट कैन टर्न इनटू एन एब्जॉर्बेंट ऑफ लाइट. एंड फिर वही उन्हें पुराने टाइम्स में जैसे कहा जाता है डेवलप करने गई भेजी गई हैं फोटोज, नेगेटिव से डेवलप हो रही हैं. तो वही के कुछ केमिकल प्रोसेसेस से उस इमेज को परमानेंटली उस पे प्रिंट प्रिंट नहीं, मतलब उसको परमानेंटली जो एब्जॉर्ब्ड इंफॉर्मेशन है लाइट के फॉर्म में, वो परमानेंटली वहां स्टिक हो जाती थी. सो ऐसे पिक्चर्स ली जाती थी पुराने टाइम में. एंड द पिन होल कैमरा, which is a natural observation of this effect that we can see in a forest या under a dense canopy of trees, कि जब लाइट उस पर नेचुरल लाइट सन की पास हो रही हो तो हमें ऐसा कुछ इफेक्ट देखने मिलता है कि एब्जॉर्बेबल या यूजेबल लाइट हमें ऐसे उसमें से पास होती हुई दिखती है. सो दिस वाज द टॉपिक 11.3, अ पिन होल कैमरा. आई होप ये वीडियो से थोड़ा ज्यादा इजी लगा होगा उस एक्टिविटी को समझना.
Then we will move the next topic. The next topic is, which is the 11.4th topic, mirrors and reflections. ये mirrors आजकल के हाउस होल्ड में सबके घर में होते हैं. मिरर से ही हम देख के खुद को तैयार कर रहे होते हैं. एंड मिरर्स काफी क्लियर इमेजेस फॉर्म करके देते हैं आपको. जैसे हमने पिनहोल कैमरा में देखा तो वो बहुत धुंधली सी इमेज थी. एंड पुराने समय की जो इमेजेस होती थी वो भी बहुत ही धुंधली हुआ करती थी. आज के समय जैसे हाई डेफिनेशन नहीं हुआ करती थी. क्योंकि आज के समय की कैमरास वो पिनहोल इफेक्ट को तो यूज करते ही हैं, उसके साथ साथ मिरर्स का भी इस्तेमाल करते हैं कि वो लाइट जो सोर्स से आ रही है उसको वैसे ही लगभग ओरिजिनल रेजोल्यूशन में वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को. एंड वो पास होके वहां तक पहुंचती है. डिजिटली फिर उसको स्टोर किया जाता है. बहुत सारे टेक्निकल प्रोसेस जुड़े हैं उसमें. बट यस, मिरर्स आर objects which can reflect light and that too to give us very clear images. अब अगर यहाँ पे हम इस GIF को देखें over here, this is an observer. ये हमारी आई है. अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करके देखा कि a candle is kept in front of a mirror, तो हमें उसकी एक एग्जैक्ट इमेज यहाँ पे बनती हुई दिखेगी सेम डिस्टेंस पे. एंड ऑल्दो इसकी ज्योमेट्री में अभी हम नहीं जा रहे हैं, बट कुछ आपको दिख रहा होगा कि सिमेट्रिकल सा कुछ बनता जा रहा है इसमें. आई साइट हमारी एक सीधी डायरेक्शन में हम देख रहे हैं. इस लाइन ऑफ साइट इसको कहते हैं. ये सीधे जा रही है. जैसे ही उसकी टिप जो है कैंडल एग्जैक्टली उसी हाइट पे इस मिरर के सामने भी इमेज बन रही है एंड सेम डिस्टेंस पे. तो दिस इज अ नॉर्मल मिरर. ये भी टर्मिनोलॉजी हम अपने लेटर क्लासेस में सीखेंगे. कितने टाइप्स के मिरर्स होते हैं, उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, कैसी इमेजेस वो फॉर्म करते हैं, व्हाट नॉट. बट जो मिरर्स हम अपने घरों में यूज करते हैं, स्ट्रेट मिरर्स जो होते हैं, वो नॉर्मल मिरर्स कहलाते हैं. एंड दे गिव यू वेरी एक्यूरेट, यू नो इट कुड बी अ 99.99% accurate depiction of actually how you are. तो इसमें इमेजेस भी इन्वर्टेड नहीं हो रही, सीधी इमेजेस बन रही हैं. तो ये हमें एक फायदेमंद चीज मिल गई कि हमको उल्टा नहीं देखना पड़ेगा खुद को. अगर हमें अपना रिफ्लेक्शन देखना है पिनहोल कैमरा में जैसे उल्टा दिख रहा था, मिरर्स कैन गिव अस ए इरेक्ट इमेज, एन इरेक्ट इमेज, सॉरी. सो इसको भी थोड़ा और परसेप्शन के साथ देखने के लिए या समझने के लिए लेट अस गो थ्रू दिस वीडियो एज वेल. तो ये एक सिमुलेशन है विच इज शोइंग अस कि कैसे एक इमेज बन रही है इफ देयर इज अ लाइट सोर्स इन फ्रंट ऑफ एन डायरेक्ट मिरर या एक नॉर्मल मिरर. एंड कैसे वो इमेज बिहेव कर रही है, वो इमेज मूव कर रही है सामने वाले ऑब्जेक्ट के साथ कि नहीं, या फिर कैसे कैसे उसके न्यूएंसेस हैं वो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं. एंड लगभग ऑब्जर्वेशन से हम ये देख पा रहे हैं कि दिस इज सिमेट्रिक. जितना मूवमेंट मिरर के सामने हो रहा है उतना ही इमेज भी पीछे आगे पीछे जा रही है. सो दीज आर द बेस्ट यूज्ड मिरर्स इन आवर डेली लाइफ. क्या ये हमें सबसे एक्यूरेट डिपिक्शन देते हैं हमारे यूज केस में. एंड यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है जिसमें चेस चेस के पॉन को मूव किया जा रहा है ऑन द चेस बोर्ड. एंड वही वही सेम सिमेट्री दिखाई जा रही है इसमें भी कि कैसे मूवमेंट्स होते हैं मिरर के सामने और उसकी इमेज कैसे दिखती है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना हमारे लिए जरूरी ये है कि मिरर में इमेज तभी दिखेगी व्हेन देयर इज सम लाइट विच इज फॉलिंग ऑन द मिरर. शुरुआत में जो डिमॉन्स्ट्रेशन हम देखा वो कैंडल वाला. अगर कोई भी रूम एकदम डार्क हो, देयर इज नो लाइट इन अ रूम, और वहां पे वो मिरर रखा हो, तो देयर विल बी नथिंग विजिबल. आप खुद को नहीं देख पाएंगे मिरर में बिकॉज देयर इज नो लाइट विच कैन गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे क्या चीज है. असल में जो भी हम चीज देखते हैं अपने पूरे सराउंडिंग में वो उससे बाउंस की हुई लाइट ही होती है. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट
पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में वो आती है, तभी हम परसीव कर पाते हैं। हमारा ये सेंस ऑफ लाइट जो है, इमेज सेंस, विजुअल सेंस जो हमारा आईज है, तभी पता कर पाती हैं कि वो क्या चीज है जिस जो हम सामने देख रहे हैं अपने। व्हेन देयर बी नो लाइट, तो हमें वहां पे क्या ऑब्जेक्ट है वो भी नहीं दिखेगा। एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड कलर्स। अब रेनबो के जो कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, जिनको विब ग्योर से हमने याद किया था अपने फाउंडेशन ईयर्स में, तो उस पे भी आएंगे कि कलर्स क्यों होते हैं। बट कुछ हमें अभी यही समझना है कि सर्टेन कलर की लाइट जब किसी चीज से रिफ्लेक्ट होके आती है, वो इन्फॉर्मेशन हमारा दिमाग प्रोसेस करके बताता है कि ये कलर है उसमें। अब इसके न्यूएंसेस और इसके डिटेल्स में हम फर्दर क्लासेस में जाएंगे। बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट दैट वी आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ अस, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक लाइट सोर्स का होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड, टू सी इट्स रिफ्लेक्शन इन अ मिरर। अब पिछले वाले में तो कैंडल ही लाइट सोर्स थी, तो वो दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे एक एक्सटर्नल लाइट सोर्स है, कहीं पे भी एक रूम की लाइट हो, एम्बियंट लाइट हो सकती है, एंड दैट इज गिविंग अस द एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द चेस pawn on a chessboard, and we are seeing the reflection in the mirror. So we come to an end of our class sixth, the light shadow reflector reflections topic, and let us quickly go through what all we have learned, so that we can also retain a good amount of things from today's class, which is very basic. I know all of you do know these things beforehand, but some terminologies, कुछ terminologies जैसे translucent, transparent और opaque objects के बीच में difference, luminous, non-luminous objects, reflection, इन चीजों को बार बार हम सुनते जाएंगे, बार बार हमारे कानों में पड़ेंगे ये कीवर्ड्स और ये टर्मिनोलॉजीज, तो हम यूज्ड हो जाएंगे इससे, हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि भाई ये क्या था, ये क्या था। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी क्लास टू लाइट। लेट्स सी। Opaque objects do not allow light to pass through them. Translucent objects allow light to pass through them partially, and transparent objects allow light to pass through them completely, and we can see through these objects clearly. So ये थे हमारे इनिशियल 3 टर्म्स जो हमें याद रखने हैं। लाइट हमारे फिजिकल रियल में जब चीजों से इंटरेक्ट करती है, तो वो इन्हीं 3 ऑब्जेक्ट्स, इन्हीं 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स के कैटेगरीज में उनको हम रखेंगे, इंटरेक्शन ऑफ लाइट्स के सब्जेक्ट को। एंड इससे हमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की समझ में आ जाएगी, इवन इन आवर नो detailed lectures in further classes. Shadows are formed when an opaque object comes in the path of light. शैडो का फॉर्मेशन हमने देखा ही, जब लाइट के पाथ को कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, उसकी लाइट को पास नहीं होने देगी, तब शैडोज बनती हैं। अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड अनदर ओपेक ऑब्जेक्ट, तब वो बहुत ही हार्श, बहुत ही डेंस शैडो बनेगी, कंप्लीट शैडो बनेगी। बट इफ देयर इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बिटवीन एन ओपेक बॉडी एंड द सोर्स ऑफ लाइट, तब एक माइल्ड शैडो बनेगी, या फिर एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट ऐसा होगा which is letting less amount of light to pass through it. Then we learnt about a natural phenomena that gave rise to the modern cameras, and that was the pinhole camera effect. And the natural observation or inference that we took from our observations of the nature was that if you see light passing through a canopy of trees, a dense canopy of trees, yeah, a dense forest, you can see some rays passing through it which are not very harsh on your eyes, क्योंकि वो बहुत कम लाइट को पास होने दे रहे हैं, and that was the pinhole camera effect. Pinhole camera can be made with simple materials and can be used to image the sun and brightly lit objects. तो ये भी एक रीजन है कि पुराने समय में जो फोटोज होती थी थोड़ी डल हुआ करती थी, क्योंकि जो पिनहोल कैमरा के पूरे अपैरेटस से जो फाइनल इमेज बन रही थी वो क्लियर नहीं हुआ करती थी। वो ट्रांसलूसेंट पेपर की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइट दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड या रिकॉर्डेड वाज नॉट वेरी गुड, एंड सिर्फ नेचुरल लाइट कम पड़ जाती थी और उतनी हाई क्वालिटी इमेजेस को बनाने के लिए। Then we also found
through our experimentation that we did with mirrors was that light travels in straight path. जो क्या कहते हैं, हमने इमेजेस बनती हुई देखी वो सेम हाइट की बनते हुए देखी, और एक नॉर्मल मिरर में, ऐसा मिरर जो कोई न्यूएंसेस ना क्रिएट करे इमेजेस में, से एग्जैक्टली वैसे ही इमेजेस बनाए जैसा एक ऑब्जेक्ट असल में है. Then we saw that there is a symmetry between the images formed and the line of sight that we are seeing it with. So this showed that light travels in a straight line. एंड अभी आगे के चैप्टर्स में हम ये ज्योमेट्री से समझेंगे भी कि जो शैडोज बनती हैं वो किस एंगल पे बनती हैं, क्या होता है. ओके आशी आस्तिक, आई विल गेट बैक टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ पिन होल इन अ व्हाइल, बस मैं कंप्लीट कर लूँ ये. मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेजेस, एंड ये हमने जाना भी कि मॉडर्न कैमराज में मिरर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए टू एक्चुअली improve the quality or the resolution of image that is being captured by that lens. So these were very basic concepts. I hope it was not difficult for you guys to understand the topics that we covered today. And as on Astik's request, we are going back to the slide in which we discussed about the pinhole camera effect. So Astik, the pinhole camera effect was this observation that was made um, since the inception of cameras, yeah, since the inception of images that we started capturing. तो ये जो इफेक्ट ऑफ सन है, जब हम सन को कभी नेकेड आई से अपनी देखेंगे तो वो करना भी नहीं चाहिए, पहली बात. आपने ये भी देखा होगा कि सन को देखने के समय हमें पुराने लोग कहते हैं या फिर इवन मॉडर्न पीपल से कि आप एक एक्सरे का जो पेपर होता है, द पेपर दैट ऑन विच एक्सरेज आर प्रिंटेड, एक्सरे स्कैन्स आर प्रिंटेड, उससे देख सकते हैं तो काफी ज्यादा लाइट को फिल्टर कर देता है, वो हम देख पाते हैं. जब लोग चंद्र ग्रहण वगैरह देख रहे होते हैं, सोलर इक्लिप्सेस देखते हैं, तब भी दे यूज दैट. तो वो बहुत सिलेक्टिव लाइट को पास होने देगा. एंड दिस इज a translucent kind of paper that allows only selective light to pass. But नेचुरल फिनोमिनन में ये भी देखा है कि अगर एक बहुत छोटे एरिया से लाइट निकल के आ रही हो, बहुत छोटे एरिया से, तो वो बेरेबल होती है, वो हम फुल फोर्स ऑफ द सन नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी आंखों में. वी आर ओनली लेटिंग सर्टन पोर्शन ऑफ दैट होल ऑब्जेक्ट लाइट टू पास थ्रू इट. तो ये नेचुरली अकरिंग हमें लीव्स लीव से पास होती हुई सनलाइट में दिख जाता है जब हम एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट के अराउंड गुजर रहे होते हैं, या फिर एक ऐसा पेड़ जिसमें बहुत घनी पत्तियां लगी हुई हैं, उनमें अगर आप बैठ के आराम से कभी ऑब्जर्व करें तो उसमें पास होती हुई जो लाइट है वो आपको इतनी परेशान नहीं करती है, एंड वो रेज आपको प्लेजेंट लगती है देखने में और फील करने में भी. सो दैट इज व्हाट गेव राइज टू दिस पिन होल. पिन होल मतलब वही कि छोटे पिन साइज होल से अगर हम लाइट को पास होने दें, सो वी कैन एक्चुअली मेक यूज ऑफ दैट लाइट. तो वही चीज एक्सपेरिमेंटलिस्ट्स ने और फिजिसिस्ट्स ने एक apparatus के थ्रू हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, which later turned into the technology of photography. एंड इस वीडियो में हमने यही देखा था कि कैसे एक लाइट का सोर्स अगर इस पिन होल कैमरा के apparatus के सामने रखा है तो इट फॉर्म्स एन इमेज. पिन होल कैमरा की इमेज भी कैसे फॉर्म हो रही है ये भी हमारे लेटर क्लासेस में है. सो आस्तिक्स question will be answered in the later classes with proper explanation of geometry and all the phenomena that are present here in relation to image formation and whatnot. So just be patient with me. अब हमारी, yeah, thank you guys. अब हमारी जर्नी लाइट की तरफ शुरू हो चुकी है, एंड बीच बीच में हम कनेक्ट भी करते रहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे कनेक्टेड है लाइट, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट है लाइट जो हम अपने मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट में देखते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो गिव्स राइज टू लाइट, एंड we started out with this journey on fundamental physics by a very fundamental law that energy can neither be created nor be destroyed. तो light हम generate तो नहीं करते, but we transmute some energy into light or electricity or magnetism or wind or mechanical or whatnot. It is only energy that has been existing since
the inception of the universe and will keep on existing. हम बस उसके different different effects, transformations और intermediate states में ही खेलते हैं और उनको observe करते हैं. So that will be all for today. Thank you guys. Thank you for your patience, and we will meet next Thursday with a new chapter, which will be our class 7th chapter on light. And I hope that it will be progressively more difficult and we will get to learn new things about light. Thank you. Thank you so much.